Hello friends. So today we will study the reforms required in the 7th schedule. In the last lecture, I already explained the issues in the central sponsored schemes and the solutions. What are the reforms required in central sponsored schemes? So one point which actually I have missed in that lecture, so I'll be covering that point in this lecture, and then I'll take the lecture about the reforms required in 7th schedule. So center as the central sponsor schemes, I have already told you that it actually erodes the autonomy of the state government. ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्कीम्स डिवाइस करती है, पूरा आर्किटेक्चर एंड फ्रेमवर्क सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, एक तरह से सिलेबस बनाना पूरा सिलेबस, और साथ में करिकुलम फ्रेमवर्क भी, सिलेबस के साथ कंटेंट्स भी उसके सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है विदाउट इवन कंसल्टिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा भी होता है। ठीक है, और इसमें 60:40 का रेशो होता है फंड्स का, 70:30 का होता है, 75:25 का होता है ना, डिपेंडिंग ऑन दी स्कीम एज वेल एज डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट्स ऑल्सो। तो इसमें एक पॉइंट ये था विच आई मिस एक्चुअली व्हेन आई वाज डिलीवरिंग द लेक्चर ऑन CSS। सो इसमें ये है कि द 40, सो इफ द रेशियो इज 60:40, so 40 will be delivered by the state government, will be released by the state government, 60 by the central government. Now it usually happens with the central sponsor schemes that this 40% of the state devolution will only be will be released first, and then central government will release its share. So the condition, so it's a conditional transfer. So conditions are, so because it is the tied grant, so it is tied with the central, with the scheme, with whatever reforms are required, whatever uh, on what subject it is actually delivering. So it is tied with that subject first, tied है, and second the condition of releasing 60% of center or share of the center. And what is the condition? That first states release its share, and then state will release its share, and then center will release its share. ठीक है, ये होता है। अब इसमें इशू ये होता है कि जो पुअर स्टेट्स हैं वो, अब 60:40 रेशियो विल बी मेंटेन्ड, ये रेशियो मेंटेन्ड होता है ना, मेंटेन्ड होगा फॉर एवरी स्टेट। अब क्या है, जो पुअर स्टेट्स हैं हैविंग पुअर GSDP, है ना, पुअर स्टेट्स, ठीक है। अब पुअर स्टेट्स क्या है ना, मान लीजिए एक स्टेट ने 20 करोड़ रिलीज किए, दैट इज 40%। तो व्हाट इज द 60%? तो इसका 60% क्या होगा? सो इट इज 3/2 of 20, so 30 crores. So 30 crores will be released by the central government because the ratio of 60:40 will be maintained. And if a state release 50 crores, then what will central government release? 3/2/50, 75 करोड़। तो स्टेट गवर्नमेंट ने 50 किए, ऐसे 75 किए। तो आप अगर आप देखेंगे तो जो जिनकी हाई ग्रोथ स्टेट्स हैं, दोज हु आर रिचर, दो स्टेट्स विच आर रिचर, है ना, जो रिचर स्टेट्स हैं वो क्योंकि अपना शेयर ज़्यादा देती हैं, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर ज़्यादा हो जाता है। 75 करोड़, इसने 50 दिए तो उसे 75 दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहाँ पे 20 दिया तो ये केवल 30 ही दिया सेंट्रल ने, रेशियो मेंटेन करता है। ठीक है, तो रिचर स्टेट्स विल ऑलवेज इन अ बेनिफिट इन इम्प्लीमेंटिंग द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। रिचर स्टेट जो भी पैसे वाली हैं वो और ग्रो कर जाती हैं, और जो पुअर स्टेट्स हैं इन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, दिस इज वन ऑफ द इशू दैट द पुअर स्टेट्स गेट द लेसर फंड फ्रॉम द सेंटर, बिकॉज it depends on whatever funds are released by the state and the ratio will be maintained. तो आप ये लिखिए, ये भी एक इशू है जो कि मैं मिस कर गया था, which I was thinking that I have missed, and I
was thinking that I'll be informing you in the next lecture. So this is about issues with CSS. Now today we will discuss about the issues in the 7th schedule. 7th schedule का मैंने बोला था last lecture में कि I'll be discussing because that topic is very important as the chairman, current chairman of the 15th Finance Commission, Shri Nand Kishore Singh, has already said about restructuring of CSS first, and second, revisiting of the 7th schedule. Even many committees and commissions in the past also have said about revising or exhaustive review of the 7th schedule. But till now there is no exhaustive review of 7th schedule has been done, and very minimal changes have been done which are actually required to reform the 7th schedule. So इसमें जो reforms required हैं वो नहीं हुए हैं अभी तक. पहले हम डिस्कस करेंगे कि 7th schedule क्या है, then we will discuss what are the issues and then what are the solutions. So this is how we will discuss the lecture. सेवंथ शेड्यूल है ना, 7th schedule. So we'll discuss about it, and then we'll discuss issues, and then we'll discuss solutions. Simple, है ना. And in this we will discuss the history about 7th schedule, and here we will discuss history also from past about history, and then issues and solutions. So it's without doing much delay, we'll starting with the lecture. Now what is 7th schedule? So you already know about the 7th schedule, that the 7th schedule actually it divides the legislative powers among the in the union as well as state, between the union and states. So the subjects or entries have been divided according to the authority of the respective government. So this 7th schedule contains the various lists which contain the subjects on which union as well as states have the authority to legislate. So different lists have been contained. So division of legislative power. 7th schedule detailed the division of so you can write division of legislative power based on the subjects mentioned in different list or union, state and concurrent as mentioned in 7th schedule. ठीक है ना, 7th schedule में mentioned है ये लिस्ट, और उसके बेसिस पे डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं और सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेटिव भी होते हैं, है ना. लेजिस्लेटिव प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ये 7th शेड्यूल में होता है. उसके अलावा 7th शेड्यूल में क्या है, टैक्स हेवन, एक तो लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना, प्लस टैक्सेशन और फाइनेंशियल पावर्स भी इसमें डिटेल्ड है. बोथ, सो ऑल, सो लेजिस्लेटिव पावर्स बताते हैं कि किन सब्जेक्ट्स के ऊपर कौन लेजिस्लेट कर सकता है. सो वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेट भी अकॉर्डिंग टू द लेजिस्लेटिव पावर्स है इन एज कोटर्मिनस विद द लेजिस्लेटिव पावर. सो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एज पर द 3 लिस्ट which are coterminous with the legislative power, and these lists also contain the taxation powers also, or the various taxes which can be imposed by union as well as state government based on these lists. Now this is all about the 7th schedule. Now we'll see what is the union list. तो union list क्या है, वो वाले सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट में जिसमें केवल यूनियन गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट लिस्ट जिसपे स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है, एंड कंकरेंट बोथ यूनियन
प्लस स्टेट गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट, ठीक है, ये है. एंड दिस सेवंथ शेड्यूल, सो डिवीजन ऑफ पावर्स हैव बीन डन एज पर सेवंथ शेड्यूल प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 246. सो आर्टिकल 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो डिवीजन करता है पावर्स का एज मेंशन इन दी सेवंथ शेड्यूल. तो आर्टिकल 246 डिवीजन करता है एज पर दी सेवंथ शेड्यूल, और सेवंथ शेड्यूल बताता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो आर्टिकल 246 डिवीजन करता है एंड सेवंथ शेड्यूल यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट बताता है. यूनियन में करंटली 61 सब्जेक्ट्स हैं, इसमें 52 हैं, और इसमें सॉरी यूनियन में 100 है, स्टेट में 52 है, और इसमें 61 है, कॉन्करेंट में 61 है. तो सबसे ज़्यादा आप देखें यूनियन लिस्ट में है सब्जेक्ट्स. तो ये एक इशू है, हम जब इशूज़ में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि यूनियन में ज़्यादा है और स्टेट में कम है, और इवन कॉन्करेंट में भी ज़्यादा है कंपेरेटिवली टू एज कम्पेयर टू दी स्टेट लिस्ट. ठीक है, तो ये डिवीजन करता है. यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे डिफेंस है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, एंड टेली कम्युनिकेशन है, ठीक है ना, एंड देन रेलवेज है, और दोज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर डिक्लेयर टू बी इन द नेशनल इंटरेस्ट बाय द यूनियन गवर्नमेंट एज पर दी एनी लॉ ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, एंड coinage currency. So ये सब है which actually require the intervention of the union government to ensure the uniformity or to ensure that the and in the entire territory of India the rules will be or the uniformity will be maintained. तो डिफेंस है, ऑब्वियसली टेलीकम्युनिकेशन है. तो इसलिए ये जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनका स्कोप वाइड है, और जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि which are actually required to be uniform across the country have been put into यूनियन लिस्ट. ठीक है ना, यूनियन लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स दिए हैं, तो आप लिख सकते हैं बैंकिंग है, डिफेंस है, इंश्योरेंस है, कॉइनेज एंड करेंसी है, ठीक है ना, एंड सो ऑन. स्टेट लिस्ट में विच आर ऑफ लोकल और रीजनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस कंसर्न है पब्लिक ऑर्डर, ठीक है ना, हेल्थ है, सैनिटेशन है. सो विच आर ऑफ रीजनल और लोकल इंपॉर्टेंस. एंड कंकरेंट में कौन से हैं कि जिसमें यूनिफॉर्मिटी तो चाहिए ही, बट दो सब्जेक्ट्स जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी लेजिस्लेट कर सके, यानी कि those subjects in which union as well as state can legislate, जिसमें यूनिफॉर्मिटी भी चाहिए प्लस लोकल डिटेलिंग भी चाहिए, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी वो कर सके, उसमें अपने रीजनल एस्पिरेशंस या लोकल नीड्स के हिसाब से उन कानूनों के अंदर डिटेल कर सके और उनको एज पर देयर रीजनल और लोकल एरिया इम्प्लीमेंट कर सके. जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ठीक है. सो दी सब्जेक्ट्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बहुत ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है. दो सब्जेक्ट जैसे एजुकेशन है, ऑब्वियसली नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल वाइड, सो देयर शुड बी अ मिनिमम स्टैंडर्ड होना चाहिए. तो एक ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी चाहिए एजुकेशन में कि एक स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पूरे देश में मिले, बट लोकल नीड्स के हिसाब से एजुकेशन आप भी डेवलप कर सको और आप भी इम्पार्ट कर सको. जैसे मदर टंग में आपको एजुकेशन देना है, तमिलनाडु में तमिल में दे सकते हो, गुजरात में गुजराती में दे सकते हो, तो सिमिलर टू लाइक दैट. और यूनियन में इंटर स्टेट वाले भी हैं, है ना, जो कि दोज इश्यूज विच आर इंटर स्टेट स्पेसिफिक, लाइक हाईवेज है ना, रोड्स इसमें है बट हाईवेज उसमें है यूनियन में. लेबर, लैंड, लेबर, एग्रीकल्चर स्टेट में है बट लैंड एक्विजिशन इसमें है.
then social security, social insurance, सोशल, अच्छा ये नज़र नहीं आ रहा ना, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। तो कॉन्करेंट में क्या था? सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, है ना। एंड इलेक्ट्रिसिटी भी इसी में है, both can legislate and can administrate. So these are the various lists. बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, मोटे मोटे सब्जेक्ट्स की हमने बात कर ली है, ठीक है। ये है, और टैक्सेशन, टैक्सेस भी हैं यूनियन में, कुछ टैक्सेस यूनियन में लिखे हैं और कुछ स्टेट के अंदर हैं, स्टेट लिस्ट में है। जैसे अल्कोहल है ना, अल्कोहल के ऊपर जो टैक्स हैं, ओपियम, नारकोटिक्स, इनके ऊपर है ना, दीज आर ऑल मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट एंड सम आर मेंशन्ड इन कॉन्करेंट, ठीक है। नाउ so these are the various subjects which are mentioned in different list, union, state and concurrent. अब हमें देखना ये है, ये बेसिकली हमें ये लिस्ट दी गई थी। अब इसमें बहुत चेंजेस, बहुत कम चेंजेस हुए हैं। एक चेंज हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था? तो 42nd अमेंडमेंट 1976, सेकेंड अमेंडमेंट 1976, 5 सब्जेक्ट्स जो थे इसने, जो कि स्टेट लिस्ट में थे उस टाइम बिफोर दिस अमेंडमेंट, हैव बीन ट्रांसफर्ड टू कंकरेंट लिस्ट। अभी क्या सब्जेक्ट्स थे? एजुकेशन था, फॉरेस्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस था, ठीक है ना। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्ट्स अदर देन SC and HC, ठीक है। and one more subject is there, so these subjects have been moved to concurrent list. So I think electricity भी था, ठीक है। these subjects have been moved to concurrent list. ये एक अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। ये हम इश्यूज में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सीधे आते हैं इश्यूज के ऊपर, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई नहीं पूछेगा आपसे इन लिस्ट के बारे में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए ऑब्वियसली, बहुत डिटेलिंग भी नहीं चाहिए, जितनी डिटेलिंग चाहिए मैंने आपको बता दिया है कि जो लोकल नीड्स वाले हैं, लोकल एस्पिरेशंस वाले हैं या लोकल इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं सब्जेक्ट्स, वो स्टेट लिस्ट में है। विच रिक्वायर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस दी टेरिटरी ऑफ इंडिया, वो यूनियन में है। कंकरेंट विच एक्चुअली रिक्वायर्स यूनिफॉर्मिटी एज वेल एज लोकल, तो यूनिफॉर्मिटी एक मिनिमम स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, एंड लोकल नीड्स फॉर डिटेलिंग, ताकि वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर पाए, दैट इज़ फॉर कंकरेंट, ठीक है। लेकिन अब हम पढ़ते हैं, इसमें इश्यूज हैं बहुत सारे जो कि रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि नहीं हुए हैं। उसमें हम कुछ प्रोविजंस भी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनकी वजह से ये इश्यूज हैं। तो व्हाट आर द इश्यूज इन द 7th शेड्यूल? इश्यूज इन 7th शेड्यूल, सबसे पहला इशू क्या है? पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ते हैं। यूनियन encroaching upon state domain.
इसमें क्या है, यूनियन एनक्रोचिंग अपॉन स्टेट डोमेन। तो आई राइट इन सम बोल्ड, थोड़ा सा ऐसे बड़ा लिख लेता हूँ ताकि इट इज मोर विजिबल। सो यूनियन एनक्रोचिंग अपॉन स्टेट डोमेन, ठीक है ना, यूनियन एनक्रोचिंग ओवर स्टेट डोमेन। अभी क्यों हो रहा है, किस, पहले कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं एंड देन वी विल सी ये क्या हो रहा है। आपको पता है, इसमें एग्जांपल लिखिएगा, पब्लिक ऑर्डर। सो यू ऑलरेडी नो दैट पब्लिक ऑर्डर इज इन स्टेट डोमेन। पुलिस स्टेट में है ना, ठीक है, बट नो व्हाट इज द इशू, पब्लिक ऑर्डर का क्या मतलब है, मतलब स्टेट काम, जहां भी कोई पब्लिक डिस्टर्बेंस होगा, स्टेट विल लुक इनटू द मैटर एंड स्टेट विल, सो जहां पे भी कोई पब्लिक ऑर्डर रिलेटेड इशू होगा तो इट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट टू रिस्टोर द पब्लिक ऑर्डर। नाउ अब आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट एजेंसीज, सीबीआई है, एनआईए है, आर्म्ड फोर्सेस है ना, ये क्या करती हैं, पब्लिक ऑर्डर ही तो करती हैं भी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है ऑफेंसेस का, ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन, करप्शन प्लस अदर ऑफेंसेस। एनआईए अब आपको पता है कि अभी रिसेंटली ये, सो देयर इज वन इंसिडेंट विच हैज बीन गिवन टू एनआईए, है ना, हाँ, दैट अंबानी इंसिडेंट, यू नो, अंबानी के घर के बाहर, मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर, आपको पता है कि कुछ संदिग्ध कार मिली थी जिसके अंदर कुछ जिलेटिन्स विस्फोटक विच आर कॉल्ड एक्सप्लोजिव मिले थे। वो जो केस है दैट हैज बीन हैंडेड ओवर टू एनआईए, बट वो पुलिस के परव्यू में आता है। पब्लिक ऑर्डर है ना, पब्लिक को ऑर्डर मतलब पब्लिक के लिए काम करना, ऑर्डर मेंटेन करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, क्राइम को कंट्रोल करना। तो ये क्या कर रहे हैं, ये क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। आर्म फोर्सेज आपको पता है डिप्लॉय करते हैं टू रिस्टोर दी पब्लिक ऑर्डर। कहीं वायलेंस होता है, कहीं इलेक्शन होता है तो आर्म फोर्सेज डिप्लॉय करते हैं। इवन दिल्ली में आप जानते हैं फार्मर एजिटेशन में आर्म फोर्सेज हैव बीन डिप्लॉयड हेविली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये एनक्रोचमेंट है। पब्लिक ऑर्डर इज इन स्टेट डोमेन, बट इशू क्या है मैं बताता हूँ इशू क्या है। सो पब्लिक ऑर्डर इज इन स्टेट डोमेन, पब्लिक ऑर्डर इज इन स्टेट डोमेन, बट डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस और एनी अदर सेंट्रल फोर्स, डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म्ड फोर्स और सेंट्रल फोर्स in aid of civil force in state, that is in union domain. That may be after the request of the state or without the request of the state, क्योंकि यूनियन के डोमेन में है। दूसरा वार एंड पीस, पीस लड़ाई एंड पीस, शांति, शांति के लिए कुछ करना हो, दैट इज ऑल्सो इन यूनियन डोमेन। पब्लिक ऑर्डर इज इन सेंट्रल स्टेट डोमेन, लेकिन स्टेट यूनियन, तो आई विल राइट इन क्लियर टर्म्स कि पब्लिक इज इन, सो पब्लिक ऑर्डर, सो स्टेट, while deployment of armed forces is in union, war and peace, armed forces and other central forces which comprises of NIA and all, union. ठीक है, and it is also written in the constitution that it is the duty of the union to prevent any internal conflict. ये ड्यूटी है यूनियन की कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है और एनी एग्रेशन, मिलिट्री एग्रेशन और एनी
any type of disturbances, internal disturbances. So internal disturbance लिखा है, so it is the duty of the union. So internal disturbance, it is the duty of, so it also comes under union domain to prevent internal disturbance in any state. तो अब ये coins, so these are the overlapped entries. So these are the overlapped functionality. So this is called overlapped functionality, है ना? Overlapped functionality. So functionality is there, but that is overlapped. So some functionalities are given to union and some are state, and those functionalities are overlapped with each other. So to restore public order, police is required, but these forces can be also be deployed. So that is why ये इशू होता है कि अभी क्या होता है, सीबीआई एक्शन लेती है तो स्टेट्स चिल्लाती हैं कि सीबीआई हमारे यहाँ आ गई है, ठीक है ना, सीबीआई आ गई है. इवन कई स्टेट्स हैं तो सीबीआई की कंसेंट भी दे हैव टेकन इट बैक, मीन्स विदाउट कंसेंट सीबीआई कैन नॉट इन्वेस्टिगेट, ठीक है. बट एनआईए कैन ऑलवेज इन्वेस्टिगेट and armed forces deployment to check the internal disturbance. So that is why this is one of the major issue. Or there is another one agency of central which is NCTC, National Counter Terrorism Center, है ना. ये तो इवन अरेस्ट भी कर सकती है, इट हैज दी पावर्स टू अरेस्ट. इसके ऊपर भी स्टेट्स चिल्लाती हैं कि ये तो पुलिस की पावर है और आपने इसको दे दी है एनसीटीसी को. सीबीआई भी कर लेती है अरेस्ट, बट एनसीटीसी कैन अरेस्ट इवन विदाउट वारंट. एनसीटीसी दैट हैज बीन गिवन द पावर बट टू अरेस्ट इवन विदाउट एनी वारंट, और इट कैन सर्च एनी प्रेमिसेस विदाउट एनी वारंट. दैट इज द पावर गिवन टू नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर. सो ये एनक्रोचमेंट है स्टेट डोमेन में. स्टेट्स चिल्लाती हैं कि हमारे यहाँ हमारे डोमेन में एनक्रोचमेंट सेंटर करता रहता है. एक तो ये एग्जांपल है. दूसरा एग्जांपल समझे. अब इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं. जैसे आप जानते हैं लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, है ना. तो लैंड रिलेटेड कोई भी अगर कानून है या लैंड को एडमिनिस्ट्रेशन करना ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, इवन एनी अदर लैंड अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड आल्सो, सो लैंड कम्स अंडर द डोमेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. बट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी कम्स अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, है ना. तो आपको पता है कि एक लैंड एक्विजिशन बिल पास किया था गवर्नमेंट ने, एक्ट पास किया था यूपीए गवर्नमेंट ने, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट बनाया था, है ना. 2012 में आई सब एक्ट. सो दिस एक्ट हैज बीन मेड बाय द गवर्नमेंट. तो ये क्योंकि इस वाली एंट्री को यूज किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाने के लिए, बाय लैंड बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट. अब आप जानते हैं कि रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट में हाउसिंग भी आती है ना, वाटर भी आता है, सैनिटेशन, एंड ऐसे बहुत से सब्जेक्ट्स आते हैं which are directly comes under the state domain. बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ये टच करता है, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट. तो ये एक इशू है कि ओवरलैपिंग फंक्शंस हैं कि कुछ स्टेट में है कुछ कंकरेंट में है. तो बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आपको पब्लिक ऑर्डर का बताया और ऐसे लैंड का बताया, ऐसे बहुत सारे ओवरलैपिंग एंट्रीज हैं. यानी कि कहा जाता है कि यूनियन इज एनक्रोचिंग इन दी स्टेट डोमेन. अब क्योंकि यहाँ पे रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट कानून बनाया तो यूनियन गवर्नमेंट
यूनियन गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस इशू की, स्टेट गवर्नमेंट को उसी के हिसाब से काम करना है, जबकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट डोमेन में है, तो एनक्रोचमेंट है इस वजह से स्टेट डोमेन में, ठीक है ना। क्योंकि जो एंट्रीज हैं आपकी यूनियन में, स्टेट में कंकरेंट हैं, ये 1947 की बनी हुई हैं, पुरानी, इवन नॉट 1947, इट इज़ 1935, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 वाज पास्ड, उसमें ये डिवीजन हुआ था यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट में। उसमें उस टाइम नाम अलग था, फेडरलिस्ट था, अलग अलग नाम थे, बट 1935 में प्रोविंशियल लिस्ट वॉज देयर। तो 1935 से ये हैं, और उसको 1947 में उसको रिवाइज किया, जो भी किया, बट उसको मेजर रिवीजन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो ओवरलैप हैं, कुछ यूनियन में है, कुछ कंकरेंट में है, कुछ स्टेट में है, और कोइंसिडेंट मतलब कोइंसिडिंग एंट्रीज हैं, कोइंसिडेंस, coinciding entries, which are overlapping with each other. इसके अलावा जैसे मैं आपको बताऊं, वाटर इज इन कंकरेंट, इज इन स्टेट लिस्ट, ठीक है ना, बट फॉरेस्ट इज इन कंकरेंट लिस्ट। सो एनवायरनमेंट में वाटर भी आता है, फॉरेस्ट भी आता है, तो अगर इन्वायरमेंट को गवर्न करना है तो पता नहीं, वाटर को अगर आपने बना दिया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो आर्टिकल 252 के हिसाब से बना दिया था आपने, कि आर्टिकल 252 में इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस आपको करना है, 252 और 253, जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट विच, सो यूनियन गवर्नमेंट इज कॉम्पिटेंट टू इनेक्ट एनी लॉ टू फिलफिल द मैंडेट ऑफ एनी इंटरनेशनल कोवेनेंट और एग्रीमेंट, ठीक है, दैट इज 252 और 253। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपने बना दिया, बट उसमें वाटर भी आ रहा है और फॉरेस्ट भी आ रहा है, तो वाटर आएगा तो स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में आ गया, है ना। तो इन्वायरमेंट का भी आप लिख सकते हो इसमें, लैंड का, सो आई राइट द इन्वायरमेंट पार्ट आल्सो। सो वाटर, तो आपने वाटर का एक्ट बनाया था एक, वाटर कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट, समथिंग लाइक दैट, 1974, ठीक है ना। और एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 बनाया था, वाटर कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, which covers water, air, forest, everything. So this comes under state domain, and this comes under concurrent. Air, ये किस में आता है, रेजिडुअरी हो गया, किसी में नहीं आता। तो कोइंसिडिंग एंट्रीज और ओवरलैपिंग एंट्रीज। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स कम्स अंडर कंकरेंट लिस्ट, वाइल्ड डिसीजेज, कंट्रोल ऑफ डिसीजेज ऑफ एनिमल्स कम्स अंडर स्टेट लिस्ट, तो ये भी लिख सकते हैं आप। फोर्थ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, concurrent, और एनिमल प्रिवेंशन ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल डिसीज comes under state, comes under state। उसके अलावा वाया, मैंने बताया था, वाया CSS, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, आर्टिकल 282, इसके थ्रू आप एनक्रोच करो, जो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो एनक्रोचमेंट है यूनियन का स्टेट डोमेन में, आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। फार्म लॉज, है ना, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट,
बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, जो है ना प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जिसमें फूड स्टफ्स भी है एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट्स फूड स्टफ, ये कंकरेंट लिस्ट में है। इसको यूज़ करके आपने फार्म लॉज पास कर दिए। सो मार्केटिंग, हाँ, एग्रीकल्चरल मार्केट्स दैट ऑल्सो कम्स अंडर स्टेट लिस्ट। So markets also comes under state list. Agriculture, markets, land, all under state list. While production, distribution of products, items, various items like food grains हैं, fodder है, jute है, cotton है, अलग अलग items हैं जिनका production and distribution, ठीक है ना। So I'll tell you the exact subject. So the subject is, that is the 33, I suppose, entry number 33 in the concurrent. So it is trade and commerce in and production, supply and distribution of products of any industry, foodstuffs including oil seeds and oil, fodder, cotton, jute, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इससे आप देख रहे हैं कि बहुत ही ओवरलैपिंग एंड कोइंसाइडिंग एंट्रीज हैं, कोइंसाइडिंग एंट्रीज, those who are overlapping and coinciding with each other on different, so one domain is coinciding on another domain। तो इससे क्या होता है, यूनियन जब कानून बनाता है या एडमिनिस्ट्रेट करता है उस इशू पे, तो स्टेट गवर्नमेंट के कहीं ना कहीं पावर में एनक्रोचमेंट हो जाती है, अथॉरिटी में एनक्रोचमेंट हो जाती है, क्योंकि जो हमारी जो लिस्ट है उसमें सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत पहले के पड़े हुए हैं एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड नाउ एक्सटेंसिव रिव्यू, जिसकी वजह से जो ये कोइंसिडिंग एंट्रीज हैं इसको आपको हटा के क्लैरिटी उसमें देनी पड़ेगी, यानी कि डिफरेंट लिस्ट में डालना पड़ेगा आपको, और जो भी उससे रिलेटेड एंट्रीज हैं वो एक ही लिस्ट में होनी चाहिए। वो करना चाहिए था जो नहीं हुआ है अभी तक। तो दैट इज़ वाई ये एक मेजर इशू है। इसके सॉल्यूशन हम पढ़ेंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशू दैट द एंक्रोचमेंट अपॉन द स्टेट डोमेन, ये सबसे बड़ा इन हमारे 7th शेड्यूल की वजह से ये सबसे बड़ा इशू है, ठीक है। और क्या इशू है? जो रेजिडुअरी पावर्स हैं दैट रिसाइड्स विद द सेंटर, so residuary subjects reside with the center, so residuary power resides with the center, so those subjects which are not found in any of the list, so the power to legislate as well as administrate as well as legislate, it comes it is lying with the center, so it resides with the center. State also can administrate, but in terms of the the action should not be repugnant with the union law, with the law made by the union. So any of the provision of the law, the action should not be repugnant, ऐसा होना चाहिए, वो हमारे कानून में लिखा है। इवन आर्टिकल, it is article 250 something, 250 or something, where it is specifically written that the state government should the executive action of the state should be in consonance with the law made by the center. It should not be repugnant. तो repugnant also, any of the provision if it is repugnant will be declared as null and void, ये null and void हो जाएगा automatically, ठीक है। तो रेजिडुअरी पावर रिसाइड्स विद द सेंटर, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या इशू हुआ मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल समझते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट,
इसको हम पढ़ेंगे रिसेंट कोविड 19 जब हुआ था, जो अभी भी चल रहा है अनफॉर्चुनेटली, बट उस टाइम तो बहुत पीक पे था कोविड 19 इन 2020. सो born in 19 but show its intensity in 20 and now it is degrading. So disaster management. अब आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2009 2005 that invoking the residuary powers which resides with the center because there is no present entry in any of the list having disaster management specifically written. तो डिजास्टर मैनेजमेंट कहीं लिखा नहीं है हमारे इसमें, किसी तीनों में से कहीं भी नहीं लिखा. तो इसलिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो कहीं नहीं लिखा वो यूनियन गवर्नमेंट उसके ऊपर कानून बना सकती है. तो यूनियन गवर्नमेंट ने ऊपर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बना लिया. ठीक है. और इसके माध्यम से आप जानते हैं कोविड 19 में इसने इशू डायरेक्टिव्स टू दी स्टेट्स. इसने बहुत से डायरेक्टिव्स इशू किए स्टेट को, सेंटर ने. ठीक है ना. हेल्थ रिलेटेड डायरेक्टिव्स. इन जो पावर्स हैं विच कम्स अंडर सेंटर assumes the powers which are mentioned in the disaster management act and it issues various powers. So it issues various directives which should be obeyed by the state. State cannot deny to accept or to disobey the directives issued by the center. Thus is the power which parliament or the center assumes under the disaster management act. So the directives are so the directives cannot be disobeyed. So directives are overriding. So the centers, whatever directions are issued by the center, so the state cannot deny to defy such orders and they are overriding in nature. ठीक है. सो बेसिकली डिजास्टर टू कंट्रोल एनी डिजास्टर. तो ये इसने डायरेक्टिव्स इशू किए थे स्टेट्स को, सेंटर ने, जिसमें इसने लॉकडाउन भी इम्पोज किया था. इम्पोजिंग ऑफ लॉकडाउन, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो मोड, और एक ब्रॉड गाइडलाइंस इशू की थी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ठीक है, पीपी किट्स, सैनिटाइजर टू नीडी पीपल, टू पुअर एंड नीडी पीपल, और टू प्रोवाइड रिलीफ टू माइग्रेंट्स एंड माइग्रेंट लेबर्स एक्सेट्रा वगैरह. तो बहुत से डायरेक्टिव्स इशू किए थे अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. तो बेसिकली इसमें क्या है, टू प्रिवेंट द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर एंड उनको फिर रिहेबिलिटेट करना लोगों को, यानी कि उनको कंफर्ट देना डिजास्टर से जो सफर्ड है. तो दैट कम्स अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट. अब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जैसे मैंने बोला, देयर इज नो एंट्री प्रेजेंटली देयर इन डिजास्टर मैनेजमेंट इन यूनियन लिस्ट और इन स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. तो रेजिडुअरी पावर्स यहाँ पे यूज़ की थी यूनियन गवर्नमेंट ने. तो इसकी वजह से इशू क्या हो रहा था, इसकी वजह से इशू ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट जो थी, क्योंकि हेल्थ बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली क्योंकि जो मैग्नीट्यूड था वो डिसीज़ का, दैट इज़ कंटागियस, एंड दैट इज़ कंटागियस इन द सेंस दैट फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एंड इट इज़ स्प्रेडिंग इन अ वेरी फास्ट स्पीड. सो it is required that the broad guidelines should be issued by the center to contain the disease, which is spreading uniformly across the country. So it is required definitely by the center to issue the broad guidelines to ensure the uniformity of implementation across the country. For example, nation wide lockdown है ना, वो चाहिए था क्योंकि पूरे देश में स्प्रेड हो रहा था, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ किट्स है पूरे देश में हो रहा है, ठीक है. लेकिन अब इसमें इशू क्या हुआ स्टेट्स को कि इस डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने ब्रॉड गाइडलाइंस इशू कर दी थी कि फला फॉर एग्जांपल बिजनेस विल नॉट गेट ओपन, ओनली essential commodities business will be opened, rest will be opened initially. But the thing is
कि देयर आर मैनी स्टेट्स in Uttarakhand or suppose in outskirt areas or in northeastern area, there are many states or many regions where this COVID-19 has not been spread till till that time. So in spite of that, because state has to obey the central orders, so because of that, it has to implement the lockdown uniformly across the entire territory. So that is the issue कि उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा क्योंकि सेंटर ने डायरेक्शंस दिए थे कि पूरे नेशन वाइड में पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। तो इसकी वजह से जहाँ स्टेट्स में नहीं थे या जो स्टेट्स बेटर इम्प्लीमेंट करके उसको रोक सकते थे और लोगों का बिजनेस और लोगों का काम भी सफ़र ना करते हुए अगर कर सकते थे तो वो नहीं कर पाए क्योंकि पावर विल बी ओवरराइडिंग बाय द यूनियन। तो यूनियन की ओवरराइडिंग पावर्स होती हैं जो कि एज्यूम कर लेता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के द्वारा यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसके द्वारा इसकी वजह से ठीक है, तो इसमें यही इशू हुआ था। और फॉर एग्जांपल जैसे सेंटर ने क्या किया था नेशन वाइड लॉकडाउन, तो ज़रूरत नहीं थी बहुत जगह पे। उसके अलावा बहुत डिस्ट्रिक्ट्स को आपने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में बांट दिया था। तो बहुत स्टेट्स ने अपोज किया था क्योंकि वो गाइडलाइंस फॉलो करनी थी, बट उन्होंने फिर भी अपोज करने की कोशिश की थी और कहा था कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में ना होने के बजाय देयर शुड बी सम स्पेसिफिक एरिया वेयर you can impose the lockdown and the rest of area can be kept open for commerce, है ना, for activities and commerce on all those economic activities, all those things. So that is why ये जो रेजिडुअरी पावर्स की जो मैंने बात की रिसाइड्स विद द सेंटर, इसमें क्या होता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अज्यूम कर ली पावर, डिजास्टर मैनेजमेंट इम्प्लीमेंट किया है और इसकी वजह से ये सब इश्यूज कोविड-19 के टाइम पे आए। तो मैं एक एग्जांपल आप लिख सकते हो कि रेजिडुअरी पावर्स जो कि ऐसी पावर्स हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो मेंशन नहीं है किसी भी लिस्ट में, वो रिजाइड्स विद द सेंटर, सेंटर के पास होती हैं वो पावर्स। ठीक है, इसके अलावा कोई और आप एग्जांपल दे सकते हैं रेजिडुअरी का। सो एनवायरनमेंट का भी दे सकते हैं आप, बिकॉज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अभी कहीं नहीं है। ठीक है ना, तो एनवायरनमेंट का हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। So another example is Environmental Protection Act, है ना। So this act basically ये गवर्नमेंट ने पास किया था यूटिलाइजिंग द पावर्स एज प्रोवाइडेड टू इट अंडर आर्टिकल 253, ठीक है ना, टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। अब बेसिकली ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्योंकि किसी भी एंट्री में मेंशन ही नहीं है, तो रेजिडुअरी पावर गवर्नमेंट ने यूज़ की और आर्टिकल 253 में इम्प्लीमेंट क्योंकि दैट इज़ द मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट एनी स्टॉकहोल्म कन्वेंशन। तो स्टॉकहोल्म कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो थी, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन जो थी उसको फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको पास किया, मतलब वो किया, इसको इनेक्ट किया। एंड आपको पता है वाटर के ऊपर बताया, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चलो फॉरेस्ट आर मेंशन इन, बट दिस इज वाटर कंजर्वेशन या वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये बेसिकली आर्टिकल 252 जिसके माध्यम से इफ टू और मोर स्टेट्स पास रेजोल्यूशन इन देयर असेंबली that it is competent, it is required for the parliament to pass a law related to this subject. So it is competent enough for parliament to enact such a law under such subject। अगर कोई भी दो states, two or more states अगर पास करती हैं रेजोल्यूशन और रिक्वेस्ट करती हैं पार्लियामेंट को विद दैट रेजोल्यूशन, ठीक है ना, एंड दिस लॉ कैन देन बी एक्सटेंडेड टू अदर स्टेट्स बेस्ड ऑन देयर स्टेट्स रिक्वेस्ट कम फ्रॉम दो स्टेट्स। तो दिस वाटर इन्होंने पास किया था आर्टिकल 252 में, ये 253 में पास हुआ था, बट यूटिलाइजिंग द रेजिडुअरी पावर्स।
which are being provided to it by the constitution. वो आर्टिकल 248 में दिए गई है। और आर्टिकल 249 में यह है कि अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करती है बाई 2/3 मेजोरिटी, देन इट इज कॉम्पिटेंट एनफ फॉर पार्लियामेंट टू इनेक्ट सच अ लॉ। स्टेट लिस्ट में कोई भी अगर सब्जेक्ट है तो पार्लियामेंट कैन ऑल्सो इनेक्ट इफ राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू सच एन इफेक्ट। तो आर्टिकल 249 में तो अगर आप देखेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही पार्लियामेंट को ओवरराइडिंग पावर्स दी गई हैं, स्टेट के ऊपर मोर पावर्स दी गई हैं, यूनिटरी। सो इट इज़ मोर यूनिटरी एज कम्पेयर टू दी फेडरल। ठीक है, 249 में। देन 253 का 252 का मैंने बता ही दिया, इफ टू और मोर स्टेट्स 253 का भी बता दिया, टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट, है ना। 248 रेजिडुअरी। ठीक है, और इमरजेंसी के टाइम पे भी सो अगर कोई नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल है, देन पार्लियामेंट कैन इवन इनेक्ट अ लॉ अंडर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो इनेक्ट कर सकता है, कानून बना सकता है इन अ सब्जेक्ट विच इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि एनक्रोचमेंट इन द स्टेट डोमेन एंड द रेजिडुअरी पावर्स दैट रिसाइड्स विद द सेंटर। ये दो इशू हो गए। अब तीसरा इशू देखते हैं क्या है हमारे 7th शेड्यूल में। तो थर्ड इशू इज कि सब्जेक्ट्स आर मोर इन यूनियन में कितने हैं 100, उसमें स्टेट में 61, 52 एंड कंकरेंट में 61। तो आप देख लीजिए यूनियन के बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो एक तरह से ही सो इट इज़ इन फेवर ऑफ द यूनियन एज कम्पेयर टू स्टेट्स। यूनियन के फेवर में है, यूनियन के पास ज़्यादा पावर्स हैं और काफ़ी और ज़्यादा पावर्स दी गई हैं और ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी दिए गए हैं। ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं विच आर इन द डोमेन ऑफ द यूनियन, जैसे बैंकिंग। ठीक है। अच्छा, एक मुझे बैंकिंग से याद आया, एक कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव्स आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, कोऑपरेटिव्स। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी बनाया है कानून, अमेंडमेंट पास किया है, एंड दैट विल बी पुट अंडर आरबीआई डोमेन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला कि बैंकिंग क्योंकि कोऑपरेटिव स्टेट लिस्ट में जरूर है, बट व्हेन दीज कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एम्प्लॉयड इन द डोमेन ऑफ बैंकिंग एंड बिकॉज बैंकिंग इज दिस यूनियन डोमेन, इज द यूनियन comes under the union jurisdiction, so that is why these cooperative banks come under so when they are involved in the banking, so that comes under the union jurisdiction. So encroachment in the state domain again because of the overlapping functionality। और मैं जो अभी बात कर रहा था कि यूनियन के पास बहुत पावर्स दी गई हैं और ज़्यादा सब्जेक्ट्स यूनियन के पास हैं, और धीरे धीरे आप स्टेट के सब्जेक्ट्स को कम कर रहे हो। जैसे 42nd अमेंडमेंट में आपने 5 सब्जेक्ट्स उधर निकाल दिए, कंकरेंट में निकाल दिए। ठीक है ना, स्टेट से। तो इस तरीके से वो एक तरह से दैट इज़ अ बैकडोर एंट्री टू प्रोवाइड यू मोर पावर्स। ज़्यादा पावर्स दिए जा रहे हैं और स्टेट को कम कर रहे हैं, जबकि हमारे देश में इट्स अ फेडरलिज्म इज देयर एंड दैट इज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज mentioned by the Supreme Court, or as per different decisions or cases, different cases decided by the court, that federalism is a basic structure and that cannot be destroyed by the union government. But pushing subjects in the concurrent, pushing subjects in the union, and decreasing subjects under the state list is one of the major issue which is there in the 7th schedule। ठीक है। उसके अलावा अच्छा, जो मैंने बताया था कंज्यूमर प्रोटेक्शन, दैट इज ऑल्सो रेजिडुअरी। इसके ऊपर कानून बनाया है पार्लियामेंट ने, बट कोई भी एंट्री नहीं है किसी भी लिस्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर। ठीक है, ये एक इशू है।
अच्छा, एक और पॉइंट रह गया था, वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट एंड इंटरस्टेट रिवर इज अ यूनियन, बट दिस ऑल्सो कंटेन्स वाटर. सो ये इम्प्लीमेंट करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज वाटर इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट. तो स्टेट्स क्या करते हैं, कोर्ट चले जाते हैं कि दे आर इंक्रोचिंग इन देयर डोमेन, बट बिकॉज interstate river or river valleys comes in the domain of the union government because it is mentioned in the union list, but water being a state subject, so because it is mentioned in the state, so implementing the interstate river, so there is a act also, interstate water disputes act, to resolve the disputes related to the interstate river. So it is very cumbersome for the union to resolve such disputes which are related with the interstate river or river water, because of the obstacle put by the state government in implementing such laws uniformly in their territory. ठीक है ना, क्योंकि वो कोर्ट चले जाते हैं, क्योंकि वाटर दे उनका है, वाटर उनका सब्जेक्ट है. तो ये जो ओवरलैपिंग फंक्शनैलिटीज़ की बात मैं कर रहा था, तो ये एक पॉइंट रह गया था वाटर वाला, विच आई नाउ रिकॉल टू टू बी मैंशन. अदर देन डैट एक इशू बहुत बड़ा है, टैक्सेशन का इशू है ना, ऑब्वियसली पावर्स नहीं है. टैक्सेशन, दैट इज वन ऑफ द मेजर इशू 4. अब आपको पता है कि यूनियन में टैक्सेस बताए हैं, इनकम टैक्स डायरेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टैक्स है वो तो यूनियन के पास है. स्टेट के पास लोकल टैक्सेस हैं, जैसे 40% कुल, और इसके पास 60%, और जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की ज़्यादा है, क्योंकि इट हैज़ टू सेटिस्फाई द पीपल्स एस्पिरेशंस एज कम्पेयर टू द यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि उसके पास तो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं विच आर रिलेटेड विद दी रिलेटेड विद द डिफेंस कम्युनिकेशन, इंश्योरिंग डिफेंस कम्युनिकेशन सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. बट जो लोकल नीड्स हैं, जैसे लोकल पीपल वेलफेयर के लिए, लोगों की इंश्योरेंस के लिए, लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए, सो एम्प्लॉयमेंट आपको पता है, एम्प्लॉयमेंट इज़ अ स्टेट, सो एम्प्लॉयमेंट इट्स अ employment is a state subject. Yeah, so employment is a state subject. Social security and social insurance, employment and unemployment, that comes under the concurrent list. ठीक है, तो ठीक है concurrent में है, बट मैं ये बोल रहा था कि स्टेट के पास ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं, ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हैं स्टेट को जो करनी है, क्योंकि लोकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट को गवर्न करने हैं. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्सेशन पावर्स नहीं है, there are no taxation powers, so they cannot impose new taxes, which is the comes under the purview of the union government. That is one of the major issue. इसके पास केवल 40% टैक्स है, इसके पास 60% है, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की ज़्यादा है, क्योंकि पीपल लोग, क्योंकि गवर्नमेंट लोगों के लिए है, फॉर द पीपल इज because already know the government is for the people, to the people and by the people, for, by and to the people, but so welfare लोगों का करना है, that comes under the purview of the state government, more under the purview. तो आप जानते भी हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बेसिकली स्कीम्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट में या ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर हैं जो कि लोकल एरिया के हिसाब से हैं, जैसे हाउसिंग का हो गया, वाटर का हो गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स हो गई, एम्प्लॉयमेंट के लिए हो गई, स्किल डेवलपमेंट के लिए हो गई. तो ये सारे लोकल नीड्स एंड एस्पिरेशंस वाले सब्जेक्ट्स हैं जो कि विच आर शुड कम अंडर द परव्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो टैक्सेशन पावर्स आर कम्स अंडर द पावर ऑफ द यूनियन के पास है. स्टेट के पास तो जो लिखी हुई है स्टेट में बस वही पावर है. इफ स्टेट वांट टू इम्पोज एनी न्यू टैक्स, सो दैट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सो दैट इज वन ऑफ, you can write one of the issue, being state having more responsibility, but taxation powers comes under the purview of the central government. तो ये एक इशू है जो कि आप बता सकते हैं इन दी 7th शेड्यूल.
अच्छा, एक एजुकेशन के ऊपर पॉइंट था, सो देयर इज अ पॉइंट ऑफ एजुकेशन ऑल्सो। अब आपको पता है कि ये कंकरेंट लिस्ट में है ना। बट आप जानते हैं कि अभी जैसे मेडिकल एजुकेशन कम्स अंडर दी कंकरेंट लिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल एजुकेशन। तो आप जानते हैं अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीट एग्जाम मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में दाखिले के लिए लॉन्च किया था, फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू मेडिकल इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स के लिए। सो इसका बहुत अपोज किया था कई स्टेट्स ने, और वो क्यों किया था? वो इसीलिए किया था क्योंकि अभी तक क्या होता था, जितना भी एडमिशन होता था वो लोकल उसके हिसाब से होता था, वहाँ पे कितनी सीट्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से होता था। और साथ में इसमें क्या हुआ, आपने एक यूनिफॉर्म एक टेस्ट बना दिया, नेशनल टेस्ट। पहले हर स्टेट अपने सिलेबस के हिसाब से टेस्ट लेती थी, है ना, जैसा उनकी करिकुलम में होता था एजुकेशन के में, उसी हिसाब से वो टेस्ट लेती थी, क्योंकि उसी हिसाब से उनको गवर्नेंस चाहिए अपने यहाँ। इवन डॉक्टर्स भी जो थे, उनको पता है कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पे ज़्यादा हैं हेल्थ रिलेटेड, तो ऑब्वियसली और उनका जो एग्ज़ाम होता था, हमें एग्ज़ाम पर व्यू से बात करते हैं, तो वो अपना करिकुलम के हिसाब से एग्ज़ाम लेते थे, क्योंकि लोगों ने वही पढ़ा हुआ है ऑब्वियसली। तो सो द टेस्ट वॉज इंक्लाइन एज पर देयर बोर्ड, इंक्लाइंड एज पर देयर बोर्ड। अभी क्या हुआ, इन्होंने एक नेशनल टेस्ट कर दिया, ये ज़्यादा इंक्लाइंड था सीबीएसई सिलेबस के हिसाब से। तो मैनी स्टेट्स लाइक सदर्न स्टेट्स हैव अपोज दिस नीट एग्जाम, और काफ़ी बच्चे फेल हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड भी किया था, उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। तो एजुकेशन मैंने बताया कि कंकरेंट में है, तो ये बहुत बड़ा इशू है कंकरेंट में। तो आप ये भी एक इशू लिख सकते हैं, द फिफ्थ इशू, कि यूनियन कंकरेंट लिस्ट के माध्यम से, क्योंकि कंकरेंट में क्या करता है ना, इसने बहुत सारे सब्जेक्ट कंकरेंट में मूव कर दिए हैं, तो कंकरेंट के माध्यम से वो स्टेट्स के ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स लेकर आता है। यानी कि यूनियन ऑलवेज बिकॉज इफ इट इज रिपग्नेंट टू द यूनियन लॉ, एनी स्टेट लॉ, सो इट इज if it is in conflict, so it is declared as null and void, repugnant है अगर उससे। तो यूनियन so those subjects in which union wants overriding powers, it moves it to concurrent list. That is why it govern those areas. तो ये बहुत बड़ा इशू है कि those subjects which actually required, अब एजुकेशन है, तो एजुकेशन में आप ब्रॉड गाइडलाइंस यू कैन इशू, बट दी लोकल नीड्स को आप ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, कि यहाँ पे किस टाइप की एजुकेशन देनी चाहिए, मदर टंग में देनी चाहिए, किस टाइप की यहाँ पे, किस टाइप का यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किस टाइप का कल्चर है, उसके हिसाब से यहाँ पे एजुकेशन इम्पार्ट करनी चाहिए, कि यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट इस टाइप के लोगों की है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे ऑब्वियसली आपको उस टाइप के लोग नहीं चाहिए बहुत, आपको वहाँ पे एजुकेशन चाहिए जो कि बहुत प्रैक्टिकल हो माउंटेन्स में, क्योंकि वहाँ पे आपको ग्रीनरी मेंटेन करनी है, आपको फार्मर्स, आपको माउंटेन्स का डेवलपमेंट करना है, प्रोजेक्ट्स ऐसे आपको लॉन्च करने हैं जो कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और जो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है उसको डैमेज ना करें। तो इस टाइप के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा आपको उस टाइप की चीज़ें नहीं चाहिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप डेवलपमेंट इस तरीके से करो कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी एंड वहाँ का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब करके आप करो, वो तो ऑब्वियसली आप नहीं करोगे। तो जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, तो एजुकेशन जैसे है, तो एजुकेशन की ब्रॉड गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट शुड इशू, बट द स्टेट गवर्नमेंट शुड देन डिसाइड द फ्रेमवर्क, शुड डिसाइड द सिलेबस, शुड डिसाइड दी, सो गाइडलाइंस दे दो आप, सिलेबस एंड कंटेंट विल बी डिसाइडेड बाय दी, शुड बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। होना ऐसा चाहिए कि आप गाइडलाइंस दे दो। गाइडलाइंस क्या दे सकते हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बता दिया कि 10वीं 12वीं में बोर्ड एग्जाम्स होंगे, एंड बोर्ड एग्जाम्स का एक लेवल, एक आपको एक क्राइटेरिया दे सकते हो आप, बट उसका कंटेंट एंड सिलेबस शुड बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इतना इंक्रोचमेंट मत करो कि पूरी तरीके से उनकी फ्रीडम को कब कर लो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये मोटे मोटे इश्यूज़ थे, सॉल्यूशंस की अभी बात करते हैं। मोटे मोटे मेरे हिसाब से ये इश्यूज़ थे। अच्छा, एक इशू और रह गया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का, कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का नहीं है इसमें जिक्र। अब जैसे मैं आपको बताऊं साइबर सिक्योरिटी है, वो कहीं मेंशन नहीं है, रेजिडुअरी पावर्स में चला जाएगा, ठीक है। डेटा इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सो जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, डेटा प्राइवेसी
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक आप लिख सकते हैं डेटा प्राइवेसी, ये कहीं भी मेंशन नहीं है। तो स्पेसिफिकली ये एंट्रीज होनी चाहिए आपकी यूनियन लिस्ट में या जो कहीं भी हो, कॉन्करेंट लिस्ट में डाल लीजिए, कहीं भी डालिए, बट ये स्पेसिफिकली होनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या है ना, कहीं भी है नहीं, तो ये एक तरह से एम्बिग्यूटी है। और आपने कानून बना भी दिया, बट इसमें पता नहीं चलता कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है और सेंट्रल को कितना यहाँ पे रिसोर्स देना है अपना, और क्या क्या उनकी अथॉरिटी और क्या क्या उनके राइट्स हैं। अधिकार क्षेत्र नहीं इससे पता चलता, इससे आपका ड्यूटीज़ नहीं प्रॉपरली क्लियर होती, क्योंकि ये किसी प्रॉपर लिस्ट में नहीं है, तो रिसोर्सेज कितने किसको डिवॉल्व करने हैं वो प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो पाता इस वजह से। तो आपको ऐसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो आपको डेफिनेटली आपको लिस्ट को अमेंड करना चाहिए, और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ का जिक्र इन लिस्ट में करना चाहिए। ठीक है, सो दीज आर दी इशूज विच आई कैन थिंक ऑफ, विच आई हैव रिटन एक्चुअली, विच आई कैन थिंक ऑफ currently, which are which have to be reformed, or which have to be revised, or have to be relooked by the experts. So we will propose some solutions, because we are not experts, but we are journalists, administrators, we are not experts, but we should propose some solutions. So क्या solutions propose करेंगे issues के हिसाब से, we will propose some solutions. एनक्रोचमेंट का जहाँ तक इशू है, जो एनक्रोचमेंट की बात होती है ना, एनक्रोचमेंट, तो एनक्रोचमेंट कैसे होती है, ये जो भी डूबियस एंट्रीज हैं, बहुत सारी एंट्री ऐसी हैं डूबियस हैं, डूबियस मतलब जो कि कॉन्फ्लिक्टिंग है एक दूसरे के साथ, वन यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, यहाँ पे भी कुछ है, डूबियस एंट्रीज हैं। इन एंट्रीज को क्लियरली डिमार्केट क्लियरली मेंशन करना चाहिए एक लिस्ट में। So list, so these the dubious entries, so you can write dubious entries should be clearly put in any of the list without chances of any overlapping ना हो, इस तरीके से आपको पुट करनी है। ठीक है, अब जैसे इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए पब्लिक ऑर्डर, पुलिस की जो हम बात कर रहे थे, पब्लिक ऑर्डर, तो पब्लिक ऑर्डर क्या है, स्टेट डोमेन में हम बोलते हैं, तो ठीक है पब्लिक ऑर्डर स्टेट डोमेन में होना चाहिए, नो इश्यूज विद पब्लिक ऑर्डर। लेकिन जो ऐसे क्राइम्स हैं विच आर ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, ठीक है ना, टेररिज्म, लाइक टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज, और इश्यूज सो विच आर ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स, ऑर्गेनाइज क्राइम्स, ऑर्गेनाइज रैकेट्स जो होते हैं, अलग अलग जो अक्रॉस दी बॉर्डर्स जो वर्क करते हैं, काम करते हैं अपना, ऐसे क्राइम्स जो होते हैं, तो इन क्राइम्स, दोज क्राइम्स जो अभी जो नहीं है किसी भी लिस्ट में, सो दोज क्राइम्स शुड बी पुट इन यूनियन लिस्ट, तो यूनियन में होना चाहिए वो क्राइम्स। ठीक है, स्पेसिफिकली आपको मेंशन होना चाहिए, फिर कोई कंटेंशन नहीं होगा। अगर एनआईए अगर आती है किसी क्राइम के ऊपर, तो यू हैव टू प्रूव दैट दिस क्राइम इज एक्चुअली पर्टेन्स टू ट्रांस बॉर्डर, ठीक है ना, इंटर बॉर्डर क्राइम है ये। सो दोज सब्जेक्ट्स एंट्री शुड बी पुट इनटू यूनियन लिस्ट। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर ठीक है स्टेट में होना चाहिए, पुलिस शुड बी अंडर द स्टेट, बट दोज सो इंटर स्टेट पुलिस, सो देयर शुड बी इंटर स्टेट पुलिस ऑल्सो, इंटर स्टेट पुलिस आप डेवलप कर सकते हैं। सो दोज क्राइम्स और दोज पब्लिक ऑर्डर रिलेटेड इश्यूज which actually pertains to different borders, so interstate police can cover this। ठीक है ना, इंटरस्टेट बॉर्डर, इंटरस्टेट पुलिस, तो एक इंटरस्टेट पुलिस का एक प्रोविजन आप दे सकते हैं। ठीक है ना, तो यूनिफॉर्मली आप इंटरस्टेट पुलिस एक बना सकते हैं, कहीं भी इंटरस्टेट ऐसे क्राइम्स है जिनका इंटरस्टेट इम्पैक्ट है, तो वहाँ पे वो जाके उसको कंट्रोल कर सकती है उस क्राइम को। तो पब्लिक ऑर्डर होना चाहिए, बट ऐसे क्राइम जो कि ट्रांसबॉर्डर क्राइम्स हैं उनको आप यूनियन लिस्ट में डाल सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली, जिसकी वजह से कंटेंशन नहीं होगा। ठीक है, और
एजुकेशन। अब अभी जो कंकरेंट लिस्ट की बात है, कंकरेंट लिस्ट होनी चाहिए ठीक है, बट कंकरेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट उतना ही काम करे, उतना ही पॉलिसी बनाए जितनी ज़रूरी है, और डिटेलिंग स्टेट गवर्नमेंट को दे दे। सो एक लिख सकते हैं डिटेलिंग, सो ब्रॉड गाइडलाइंस, सो कंकरेंट लिस्ट में ब्रॉड गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट दे एंड डिटेलिंग स्टेट गवर्नमेंट दे। अब इससे क्या होगा, दोनों के सपोर्ट से काम होगा, दोनों के आपस में कोऑपरेशन से काम होगा। और साथ में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी यूनियन स्टेट ये कॉन्करेंट लिस्ट में लॉ बना रही है तो विदाउट कंसल्टेशन नहीं होना चाहिए, कंसल्टेशन के साथ होना चाहिए, दैट शुड बी मेड मैंडेटरी। ठीक है, और इसको रिफॉर्म्स ऑब्वियसली इसको होना चाहिए, जो ऐसी एंट्रीज हैं जो कि रिमूव की जा सकती हैं, जो ऑब्सोलीट हो गई हैं, वो आप रिमूव कर सकते हैं। जैसे बॉयलर की कोई एंट्री है, एक हमारी यूनियन में लिखी हुई एक एंट्री जो कि इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे कुछ related some entries there. So many entries which have lost their relevance should be removed from the list. So it should be reviewed so that those entries should be removed. ठीक है, residuary powers. So residuary powers should reside with the state unless it comes under the it is necessary in the domain of the center, or it is in the national interest to be implemented by the center. So but exception is there for the center, बट कॉमनली इट शुड बी रिजाइड्स विद द स्टेट्स। तो ये एक चेंज होना चाहिए रेजिडुअरी पावर्स का। कॉन्करेंट लिस्ट का मैंने बता दिया, रेजिडुअरी पावर्स का बता दिया, एनक्रोचमेंट का मैंने बता दिया कि एनक्रोचमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसी एंट्रीज आपको क्लियरली पुट करनी होंगी लिस्ट में विदाउट चांसेस ऑफ एनी ओवरलैपिंग आपको ख़त्म करनी है। अच्छा ठीक है, अदर देन दैट पुंछी कमीशन ने यही रिकमेंड किया था, है ना, रेजुलरी पावर्स का किया था। अच्छा एक और इसका इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था रिपग्नेंसी का। तो मैं इसमें ये बोलता हूँ कि रिपग्नेंसी जो है यूनियन एंड स्टेट में अगर होती है तो यूनियन लिस्ट शैल प्रिवेल होती है ना, यूनियन लॉ, बट एक्चुअली स्टेट लॉ शैल प्रिवेल। तो आर्टिकल 254 है जिसमें कहा जाता है कि इन केस ऑफ एनी रिपग्नेंसी यूनियन लॉ शैल प्रिवेल बट इट स्टेट लॉ शैल प्रिवेल। और साथ में एक एक्सेप्शन दिया है कि if the law is reserved for the precedent extent and has got the extent, then in that state, even if it is repugnant, the state law shall prevail. तो इसमें ये होना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल एक्सटेंट रिक्वायर्ड है, बट अगर रिपग्नेंट है स्टेट लॉ सेंट्रल लॉ के तो सेंट्रल लॉ कैन ओनली बी तभी भी इनेक्ट होगा उस स्टेट में विद द स्टेट कंसेंट। स्टेट कंसेंट से ही आपको इनेक्ट करना होगा रिपग्नेंसी में। तो स्टेट को आप ज़्यादा पावर दे रहे हैं बेसिकली, कि रेजिडुअरी पावर स्टेट को दे रहे हैं, रिपग्नेंसी में आपका स्टेट लॉ शैल प्रिवेल, और दोज प्रोविजंस विच आर रिपग्नेंट तो उसमें स्टेट में जो लिखा है वो प्रिवेल करें। ठीक है, टैक्सेशन में ऑब्वियसली, तो टैक्सेशन में रेजिडुअरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन आप उसमें भी कुछ आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, और स्टेट्स को भी टैक्सेशन पावर्स देनी चाहिए, रेजिडुअरी पावर्स। सो रेजिडुअरी नहीं लिखो, आप लिख सकते हो कि दोज टैक्सेस विच आर डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट्स। सो टैक्सेशन का कुछ आपको करना चाहिए ताकि स्टेट्स कैन बी कैन हैव मोर कैन इम्पोज मोर टैक्सेस, और स्टेट के पास पावर हो टैक्स इम्पोज करने की। So, जो मैंने बोल रहा था, सेंटर शुड लिमिट द फील्ड इट ऑक्युपाइज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट टू ओनली एज मच एज इज नेसेसरी फॉर ensuring यूनिफॉर्मिटी इन बेसिक इश्यूज ऑफ नेशनल पॉलिसी विद डिटेल्स बीइंग लेफ्ट फॉर स्टेट एक्शन। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिया था। और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, ठीक है ना, वो मेंशन आपको करना चाहिए, मैंने बता दिया। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आपको एक एंट्री डालनी चाहिए। ठीक है, फार्म लॉज का जैसे मैंने बताया उसका सॉल्यूशन ये है कि एग्रीकल्चर स्टेट में है तो वही है कि वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई एंड प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज़, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद फूड स्टफ्स। तो वो कन्फ्यूजन है, तो वो कन्फ्यूजन आपको ऑब्वियसली दूर करना पड़ेगा।
ठीक है, एंड टैक्सेशन, सो रेजिडुअरी पावर्स ऑफ टैक्सेशन कैन बी गिवन टू दी स्टेट गवर्नमेंट। सो यूनियन के पास भी होगी, तो दोज एंट्रीज, सो बोथ आप कॉन्करेंट में डाल सकते हैं कि रेजिडुअरी शुड बी गिवन टू स्टेट। मैंने रेजिडुअरी स्टेट को दे दिया है, तो कहीं भी टैक्सेशन करना है तो स्टेट को हो, स्टेट भी कर सके अगर स्टेट चाहे तो रेजिडुअरी पावर शुड गो टू द स्टेट, बट इफ इट इज इन केस ऑफ टैक्सेशन सो इट शुड गो बोथ टू द सेंटर एज वेल स्टेट। तो रेजिडुअरी पावर्स मैंने बोला स्टेट को देनी चाहिए टू स्टेट्स, बट इन केस ऑफ टैक्सेशन इट शुड बी यूनियन एंड स्टेट्स बोथ, जिससे स्टेट्स भी ये रेवेन्यू जनरेट कर पाए, जो कि नहीं कर पाती अभी, डिपेंडेंट है सेंटर के ऊपर। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वो हम बात करेंगे फिजिकल फेडरलिज्म में, सो आई विल टेक अ लेक्चर ऑन फिजिकल फेडरलिज्म इन डिटेल आल्सो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल स्टडी एंड आई विल टेक अ लेक्चर, जैसे मैंने ये स्टडी करके लेक्चर लिया है, ठीक है। तो ये रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड। तो मैंने जैसे बोला कि जो एंट्रीज हैं उनको कुछ को ऐड करना पड़ेगा, तो उसको डिलीट करना पड़ेगा, रेजुलरी पावर्स स्टेट को देनी पड़ेगी, रिपग्नेंसी में स्टेट का होना चाहिए, ठीक है ना, स्टेट लॉ शैल प्रिवेल। तो इस टाइप से आपको रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे इन 7 शेड्यूल में। एग्जॉस्टिव रिफॉर्म्स एंड रिव्यू ऑफ 7 शेड्यूल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी एग्जाम में, बट आपको समझ आएगा तो आप काफ़ी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। एक मोटर व्हीकल्स के ऊपर भी है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप जानते हैं, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, मोटर व्हीकल्स, ठीक है। बट अब इशू क्या है उसमें आपने इतना पेनल्टी इम्पोज कर दिया, एंड पेनल्टी हैज़ टू बी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो कंकरेंट है तो इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट करेगा। लेकिन इशू क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिक्रीज दी पेनल्टी, इट एक्चुअली कैन डिक्रीज, बट अगर यूनियन ने बोल दिया कि कैन नॉट डिक्रीज, तो आप रिपग्नेंट नहीं हो सकते, तो आप डिक्रीज नहीं कर सकते। तो मोटर व्हीकल एक्ट में भी क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो काफ़ी सारे स्टेट्स ने अपोज किया था कि इतना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑब्वियसली अगर आप इतना वसूल करेंगे पब्लिक से, तो पब्लिक तो ऑब्वियसली पब्लिक विल नॉट वोट। सो वोट बैंक भी होता है ना, पॉलिटिकल, काफ़ी सारे पॉलिटिकल कंसिड्रेशंस होती हैं, कोई भी कानून को लागू करने में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल वगैरह भी इश्यूज होते हैं। तो डेफिनेटली मोटर व्हीकल एक्ट क्योंकि कॉन्करेंट में है मोटर व्हीकल्स, तो इट इज़ मैकेनिकल प्रोपेल्ड व्हीकल, है ना, दैट कम्स अंडर द कॉन्करेंट। सो इट इज़ बोथ दी सेंटर एज वेल एज स्टेट। तो सेंटर ने बना दिया यूनिफॉर्मिटी के लिए, बट स्टेट कैन नॉट गो अगेंस्ट। यूनिफॉर्मिटी तो बना दिया, बट स्टेट कैन नॉट गो अगेंस्ट। तो उसमें ये करना था, पेनल्टी स्टेट को डिसाइड करने के लिए बोलना था। आप स्ट्रिंजेंट कर सकते थे, बट कितना करना है वो स्टेट करेंगे, बट आपने यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया। तो दैट इज़ वन ऑफ द इशू। आप बहुत सारे इशूज़ लिख सकते हैं, कंकरेंट में ये सब इश्यूज़ होते हैं। तो कंकरेंट में ये लिखिए कि यूनिफॉर्मिटी, इस तरीके से कानून की गाइडलाइंस दे कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन हो। तो मोटर व्हीकल का दे सकते हैं एग्जांपल कि स्ट्रिंजेंट कर सकते हैं कि अप टू 10,000, फ्रॉम 5 to 10 या फ्रॉम 2 to 5। अब कितना करना है वो स्टेट को छोड़ दीजिए, उसको कितनी सज़ा देनी है स्टेट को छोड़ दीजिए। तो बहुत चीज़ आप स्टेट पे छोड़ सकते हैं। तो आप स्टेट की सारी पावर्स असर यूसर्प कर लेंगे, बट उसका यूसर्पेशन, अगर आप यूसर्प कर लेंगे पावर्स ऑफ स्टेट, तो फेडरलिज्म का मतलब ही क्या रहेगा। तो पावर्स आपको देनी पड़ेंगी ना स्टेट को भी, उनको गवर्न करने दीजिए अपने डोमेन में, आप अपने डोमेन में गवर्न कीजिए, ठीक है। तो ये सब आप कोट कीजिए एग्जाम में। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और नेक्स्ट आई विल टेक रिव्यू हो गया, एक फिजिकल फेडरलिज्म पे ले लेते हैं। अच्छा, डॉक्ट्राइंस का मैं ले रहा था, तो इसमें क्या है ना, कलरेबल, अच्छा एक कलरेबल लेजिस्लेशन भी रह गया, इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह गया, मैं भी बता देता हूँ। कलरेबल, सो आई टेक नेक्स्ट लेक्चर ऑन दी डॉक्ट्राइंस। तो एक तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को पढ़ लिया था, सो आई डिस्कस अबाउट दी अदर डॉक्ट्राइंस, जो कि मैं एक ही में डिस्कस सारे कर लूँगा अब। अच्छा, एक कलरेबल लेजिस्लेशन का भी इशू है इसमें। गवर्नमेंट ने क्या किया, जब आर्टिकल 370 स्क्रैप किया ना, तो तब प्रेसिडेंट रूल था।
इन जम्मू एंड कश्मीर, तो उन्होंने कंसेंट नहीं लेना पड़ा। तो कलरेबल लेजिस्लेशन मतलब आप जो डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको नहीं कर सकते थे, स्क्रैप नहीं कर सकते थे, बिकॉज यू हैव टू टेक द कंसेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। सो आपने इनडायरेक्ट किया, आपने प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे किया, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है ऑब्वियसली प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे, तो तब आपने ये वो कर दिया। सो व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, यू कैन नॉट डू इनडायरेक्टली आल्सो, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। तो ऐसा भी गवर्नमेंट ने किया, तो ये भी एक इशू है कलरेबल लेजिस्लेशन का, कि अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये कलरेबल लेजिस्लेशन गवर्नमेंट ने ये आर्टिकल 370 स्क्रैप किया था, ठीक है। सो डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन कम्स हेयर बिकॉज यू हैव मेड अ लॉ scrapping article 370 in which you are not competent, because it has to be passed after the concurrence of the state assembly. So you have made a law without taking concurrence, so you cannot make, but you have made, so you have made it indirectly after imposing precedent rule where this is dissolved. So you cannot make a law, if you cannot make a law directly scrapping this, and also indirectly by imposing this and dissolving this. So this is doctrine of कलरेबल legislation. तो ये भी आप डाल सकते हो इसमें कि ये भी एक इशू है डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ये इश्यूज इस वजह से ये है क्योंकि एंट्रीज ना ओवरलैपिंग है एक दूसरे में। तो पिथ एंड सब्सटेंस का इशू आता है, डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था एक डॉक्ट्राइन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस, क्योंकि ओवरलैपिंग फंक्शनलिटीज़ हैं। इसी तरीके से डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है जो कि 7 शेड्यूल से रिलेटेड है। सो यू कैन नॉट मेक अ लॉ अंडर एन एंट्री इन विच यू आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ डायरेक्टली, यू नॉट कॉम्पिटेंट, सो यू कैन नॉट मेक अ लॉ इनडायरेक्टली ऑल्सो, ठीक है। तो आई विल डिस्कस इन डिटेल इन माई नेक्स्ट लेक्चर डॉक्ट्राइन, बोथ दीज डॉक्ट्राइन्स। आई विल कोट सम केस स्टडीज ऑल्सो, सो अकॉर्डिंगली, ठीक है। So with this I end my lecture here. So wait for my new lecture. Thank you so much.